Assalamu alaikum class. Okay, you're doing fine. Today we are looking at our second module in our second section, the opportunities corporate environmental sustainability holds for the futuristic organizations. In fact, the current organization should also look up these opportunities. Remember, last time we looked at a series of risks that are associated with corporate environmental sustainability. In the context, the company is not taking any action to take care the issues or the ills that are there caused by environmental changes. Now, every side, everything has sides, positive and negative. You looked at the negative and uh, serious issues that are there as far as the environmental sustainability is concerned. Uh, if not managed, they could cast negative impact on the organization. Today we're looking at the some of the positives that are there. So then opportunity, as the word suggests, there is a chance for growth, chance to uh, advantages, a chance to build a reputation, chance to take care of the environment, the society, and then build up a brand or a brand image. So the opportunity holds many options, many chances to improve performance, to generate profit, and build up positive image then and outside the organization. So we are looking at the opportunities that have recently have come on surface for many organizations. Specifically, they are linked to certain industries without a shadow of a doubt, especially for example in the light of the uh, new options in the energy sector, the industries that are linked with the energy generation distribution, they are finding renewable energy options. So they are particularly, specifically, some industry that could get advantage from the movement toward sustainable environment. But generally, we see that these advantages are or chances for growth are equally good for all types of industries and organizations. इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमें बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं जिसके अंदर कंपनीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विसेज लॉन्च कर सकती हैं और इसकी वजह से अपना जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है इसको बढ़ा सकती हैं अपनी कस्टमर बेस को राइज कर सकती हैं फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट there is a call for products and services that are focused typically aligned with the sustainable goals यानी ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो इस बात का खास ख्याल रख रहे हों ड्यूरिंग देयर यूजेज कि वो सस्टेनेबिलिटी जो एम्बिशन है उसको देख कर बनाए गए हों हम देख रहे हैं प्लांट बेस्ड फूड्स वो बनाई गई हैं ताकि वो हेल्दी लाइफ सपोर्ट और आराम से इजीली घर में ग्रो किया जा सके मैनेज हो सके इसमें मास प्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े हम उनको स्मॉल एरियाज में भी ग्रो कर सके they will account for 162 billion of the economy in 2020 or this is typically based on consumer demand वो चाहते हैं कि स्मॉल स्पेसेस में हेल्दियर ऑप्शंस में वो इस तरह के फूड को जनरेट कर सके सर्कुलर इकोनॉमी के हवाले से ऑलरेडी हम बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं लेकिन ऑलरेडी 2020 पे बहुत सारी कंपनीज इसमें सेविंग कर चुकी हैं
टिपिकली ये कंपनी इंटरफेस कंपनी ने 450 बिलियन सेव किया। सिंगापुर की एग्जाम्पल आपके सामने है। उसने वेस्ट से और प्लास्टिक से रिन्यूएबल ऑप्शंस और रिसाइकलिंग करके कॉस्ट सेव की है, पोल्यूशन को रोका है, और रीयूजेबिलिटी का जो फिनोमेना है इसकी मदद से न्यू प्रोडक्ट्स न्यू सर्विसेज भी जनरेट की हैं और उन्हीं प्रोडक्ट को रीयूटिलाइज एज अ ग्रेट पोटेंशियल इन ओवरऑल इन दी सर्कुलर इकोनॉमी है। ये हमें बहुत सारे न्यू ऑप्शंस दे रही है। रिन्यूएबल एनर्जी इज एवर फास्टिंग एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री। कंट्रीज लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से shift कर रहे हैं। कोस्टल एरिया स्पेशली जहाँ विंड साइकिल्स हैं रेगुलरली चलती है, तो काफी फास्ट स्पीड पर आप देखते हैं कि वहाँ विंड एनर्जी के हवाले से काफी अ, काम हो रहा है ऑलरेडी कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप और वेस्ट यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ हमें सी के साथ साथ पॉपुलेशन नजर आती है, और वहाँ हमें जो विंड एक मेजर एनर्जी रिसोर्स नजर आता है, उसकी वजह से हमें एक सोलर एनर्जी इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट इज अ क्लीन एनर्जी सोल्यूशन। क्लीन एनर्जी सोल्यूशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज कोल बर्न कर रहे हैं हम, ना हम हार्मफुल गैसेस में कर रहे हैं, ना हम CO2 की पार्टिकल्स कोल बर्न से बच रहे हैं। तो इस लिहाज से क्लीन और फाइनल रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। हमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स की ब्रांड बिल्डिंग आ रही है जो कि कंज्यूमर ड्रिवन है, यानी कंज्यूमर कैसा हो और इको फ्रेंडली हो, यानी इन्वायरमेंट की हवाले से वो सीरियस को सामने रखकर डेवलप की गए हों। वन ऑफ दी सर्वे इंडिकेट्स 5% आर विलिंग मोर मनी टू ब्रांड, यानी लोग उस पर ज्यादा खर्चने भी तैयार है। दिस इज समथिंग दैट कुड एज एन ऑप्शन टू जनरेट मोर मनी। आप उन पे हाई प्राइस टैग कर, आपने देखा होगा जो प्लास्टिक कैरिंग बैग्स है, पॉलिथीन बैग्स है, बैग गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को काफी प्रॉब्लम रहा है इससे। पर मैनी पीपल मोर देन विलिंग बाय दोज बैग्स, बिकॉज उनका भी ख्याल ये था कि जो प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक बैग्स हैं, वो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। दैट्स व्हाई दे the paper based bags which are more expensive and they are ready to pay more money for that। आप देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज बैग्स, उनके ब्रांड पे लिखा है इको लाइफ, टाइटल पे लिखा है। दे लाइक इट, दे एडमायर इट, दे डिड पे मोर मनी फॉर दैट। और पॉलिथीन बैग्स आर चीपर एंड readily available, they were in excessive number हमारे कंट्री में भी। उसके खिलाफ जो गवर्नमेंटल मूवमेंट्स हैं, सोसाइटल मूवमेंट्स कर्टेल दोस बैग्स, वो उन कंपनीज को तो पसंद नहीं आएंगी डेफिनेटली, उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो कि डेवलप कर रही है प्लास्टिक बैग्स उसके साथ जुड़ी हुई है। बट फॉर द सीरियस कंसर्न्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकोनॉमी भी, हमारी लोग भी कॉन्शियस होकर इको फ्रेंडली ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। द वे वी लुक अप ऑप्शंस अक्रॉस द ग्लोब है। अच्छा, इस लिहाज से बहुत सारे और ऑप्शंस भी आ रहे हैं जो रिलेटेड हैं operations को more efficient करने के हवाले से, और इवेंचुअली हम देख रहे हैं वी लुक एट risk, but then it could be an opportunity that you'll be able to attract and retain the most talented people who love to work for a company which is environment friendly। तो हम देख रहे हैं कि कॉस्ट सेविंग कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। आपने देखा री रूट किया, AI का इस्तेमाल कर दिया, एफिशिएंट रूटिंग की, यूपीएस ने फ्लीट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के जहां वो पार्सल थे, दैट्स व्हाई वो मोर एफिशिएंट हो गया। कॉस्ट सेविंग भी हुई। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसके अंदर हम एक ऐसे ऑप्शन जा रहे हैं जिसमें वन रिटर्न नजर आता है। तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेविंग इज
the option many companies. सिमिलरली हम अपने ऑपरेशन करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें वेस्ट कम से कम हो. Specifically in the 70s and 80s, this was very famous. Toyota. Toyota's lean production was one of the top-notch ways to reduce waste, but also waste and inventory. And they were able to keep their inventory as lean as possible, their production cycle as lean as possible, and became world benchmark for lean operations. तो जो lean की फीलिंग है, being thin and tiny, keeping it as restricted as possible, इसमें कॉस्ट सेविंग भी है और इसमें ऑपरेशंस के हवाले से एफिशिएंसी भी नजर आप देख रहे हैं. हेल्दियर, फ्रेंडली एंड आउट गोइंग फेसेस नजर आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इको फ्रेंडली है. दे वांट टू फोकस देयर प्रोजेक्ट्स अराउंड सस्टेनेबल गोल्स. तो आपको वहाँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही है जो कि लिमिटेड है और विलिंग, मोर देन विलिंग टू वर्क है. अगर आपने एचआर मूवी के हवाले से जो भी डिस्कशन सुनी होंगी तो आपने देखा होगा भी मोटिवेट वर्कफोर्स. तो आपको उसी तरह की ग्लिम्पसेस आ रही हैं. दे आर वेल टुगेदर फोकस्ड राइट हैंड साइड पिक्चर. वो आर्टिफिशियल होगी, लिखा की भी होगी, एआई ने जनरेट की होगी, बट उसकी जो फीलिंग है, एम्बिशन नजर आ रही है, दैट इज योर वर्कफोर्स इज feeling happy at their workplace, highly motivated, and therefore are ready to unleash their talent in the place. So there's a great opportunity for companies if they be able to have such people around there, able to attract best talent. They will, are attracting it because their ambition is take care of the environment, and therefore these people are willing to work for these organizations. Of course, हम देख रहे हैं eventually ESG is becoming a framework. आगे जाके हम framework से बात भी कर रहे हैं. तो हम देख रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके पास गवर्निंग मैकेनिज्म है और ट्रांसपेरेंसी ला रहा है और अपने ऑपरेशन के अंदर एक विजन लेकर आ रहा है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, इन्वेस्टर्स आर मोर देन विलिंग टू पुट मोर मनी इन दैट कंपनी. तो हम इन्वेस्टर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं. दैट्स वे दीज थ्री कंपनीज आर लेबल्ड फॉर है. ये तीन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने समझ लें कि अमंग दी टॉप 10 टॉप वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज पे उनको प्लेस किया है. और उनकी अंदर आपको ग्लिम्पसेस नजर आएंगी कि दे बी एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज from the overall trend and wave of the corporate environmental sustainability. Patagonia has been very vocal. कोशिश कर रही है कि अपने जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है सोशल कॉज के हवाले से और एनवायरमेंटल कॉन्शियस के हवाले से, उसको लेकर चले, यानी उसको ब्रांड एसोसिएट भी करे. और उन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स चलाई हैं कि जो प्रोडक्ट सर्विसेज यूजर फ्रेंडली नहीं है, सस्टेनेबल फोकस नहीं है, वो कंपनी, वो प्रोडक्ट्स उनको बाइकआउट करें, उनको ना खरीदें, बल्कि उन प्रोडक्ट्स की तरफ ले जाएं जो कि रिपेयर हो सकती हैं और रिसाइकिल हो सकती हैं और की वजह से रीयूजेबल हो सकती हैं. तो उनकी जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है दैट इज रीयूज एंड रीसाइकिल, and therefore they are able to generate a lot of attraction among their uh, consumers. General Mills has been regarded as one of the top-notch organizations as far as the corporate social responsibility concerns, with highest rank being Papa Hui. They have reduced their emissions by 37%. They have been investing in agriculture and other industries, renewable energy as well, so that they will be able to reduce pollution and be able to conserve resources. They have profound focus in their sustainable overall strategic goals that they want to be more sustainable. Beyond Meat is a company that focuses on the meat industry of लोगों. बेसिकली ये है कि वो uh, जो फीड है टू दी एनिमल्स उसके अंदर की सस्टेनेबल ऑप्शंस की तरफ जाएं और कोशिश करें कि
लेस वाटर, लेस लैंड, क्रिएट करें ऐसे प्रोडक्ट के सस्टेनेबल हो। और वो जो बीफ है, बीफ पैटीज है, वो उसके प्रोडक्ट पे लिखा है कि वो एक कंजर्वेटिव रिसोर्स यूज करने के बाद डेवलप हुआ है। एंड दे हैव अर्नड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, बिकॉज हमें एनिमल किंगडम के हवाले से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज नजर आता है, और वो एक्सेसिव यूज ऑफ अदर मीट रिसोर्सेज कर रहे हैं। देयरफॉर 418 मिलियन in revenues जनरेट किया है ने अपने सस्टेनेबल गोल्स और स्लोगन्स की वजह से। ऑफ केसेस मैंने आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। एआई ने हमें उस हवाले से बहुत सारी हेल्प या सपोर्ट भी दी है। दिस फर्नीचर कंपनी विच हैज ओरिजिन इन यूरोप, आई की ये अपनी फर्नीचर के हवाले से इनोवेटिव कंपनी है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बहुत ही मशहूर है। लेकिन रिसेंटली इट इज रैंक रियली हाई बिकॉज ऑफ इट्स profound focus on ESG फ्रेमवर्क। ESG फ्रेमवर्क के हवाले से इसने साबित किया है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सेसिवली अचीव कर पाई है। और ये इसलिए था कि कम्युनिटी में डिमांड थी, गवर्नमेंट फोर्स कर रही थी कंपनीज को कि वो हाई स्टैंडर्ड सेट करें एज फार एज द एनवायरमेंटल एंड सोशल एंड गवर्नेंस कंसर्न्स आर देयर। दे आई वे has been branded so that the supplier knows what IKE wants from them। यानी वो कोशिश कर रही है कि सस्टेनेबिलिटी के हवाले से 20 साल से एफर्ट कर रही है, तो अभी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी का फोकस प्रोफाइल नजर आता है। बट दिस कंपनी हैड इट इन डीएनए, यानी उसके ब्लड में था कि वो सस्टेनेबल गोल हमेशा से अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट रखती थी। तो आप देख रहे हैं IKEA 6 ऑफ द मोस्ट रीसेंट IKEA कोड ऑफ कंडक्ट जो है किसके लिए बनाए गए हैं? नॉट सिर्फ फॉर देमसेल्फ फॉर बट आल्सो फॉर द सप्लायर्स। उनके लिए बनाए गए हैं। वो चाहते हैं कि वो खुद तो वर्कर्स राइट मेंटेन करते हैं, वो सप्लायर्स भी करें। सेफ वर्क प्लेस हो, वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ एम्प्लॉइज हो रहा हो, खास तौर पर वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको रोका जाए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर, एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी नजर आ रही हैं। और बड़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने स्टैंडर्ड और सेट किया। अगर आप IKEA के साथ काम करना चाहते हैं जैसे सप्लायर, तो आपको स्टैंडर्ड्स को ओबे करना है। जनरल इलेक्ट्रिक, GE, वेरी फेमस ब्रांड यूनाइटेड स्टेट्स का। और आप देखते हैं जी नोन फॉर इट्स इनोवेशन एज वेल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से इसका एक बहुत बड़ा हमें नाम नजर आता है।